All right. So we will have more people coming in the next few minutes as well, because like I said, over 150 people have signed up. I'm going to just keep adding them. But in the meantime, sorry, the time for questions is not right now, Pratmesh. In the meantime, just to welcome you all. Thank you for joining us. We are really happy to have you here. The talk for today is by the Kohlis, of the Kohlis, and for the Kohlis, presented to you by Bombay 61 Studio and MMM, which is the Ministry of Mumbai's Magic. MMM is a platform that aims to unite Mumbaikars on their collective action, mobilizing them to demand protection of biodiversity. We are trying to grow as a community and bring more and more people into the climate movement. And of course, we partner with a lot of local organizations, and Bombay 61 is one among them. Bombay 61, Jay and Ketki from Bombay 61 are present in this call. They are an innovative and experimental urban solutions think tank. They facilitate different sort of urban design and research projects, with public participation being key, and create many developing experiential architecture and projects. And they have been active since 2013. They're trying to create social difference through various urban issues with the community and for the community, with a very sensitive and ecological approach at its core. They conduct research, fieldwork for getting the roots to the roots of the issue, and then articulate it into simple solution that will benefit everyone. The team has been crucial here in mobilizing the Kohli community and are currently here to talk about solution. Can I request you all to be on mute when not talking, please? Thank you. We have 4 more people who have joined us. So before I'll just quickly wind up. This event today is part of our exhibition Through the Eyes of the Kohlis, a reflection of Mumbai's past, present, and future. I have given the link in the chat room, so please visit it. You can look at it. The pictures themselves have been curated from the Kohli community members, and they showcase the different sort of changes that the community has seen from social, cultural, and ecological point of view over the last 50 odd years. The discussion today is about the future of the community. The panel consists of Kohli community members who are very passionate and who many of you would already know. And they have been doing this work for the betterment of their community and the environment for the last many years. So we have with us Ganesh Nakwa. He's the founder of Blue Catch Seafoods. He's a fisherman, he's an ocean lover, and he's definitely a sustainable champion. We also have Rajhans Tapke, who is editor of Sagar Shakti, is a Kohli cuisine promoter, is a fisherman, and is a Versova Kohliwada committee member. We also have the third panelist, Vikas Motiram Kohli. He runs Bhumipatra Foundation. He's the president there. He's a social entrepreneur and he identifies as a reformer. Now I'll pass it on to Jay and Ketki to start us off, please. Yeah. Thank you, Arpita, for the beautiful introduction. I think Ketki can't unmute her. Yeah, sorry. Hello, everyone. Thank you, Arpita, for the lovely introduction. So for today's event, which is called By the Kohli, of the Kohlis, and for the Kohlis, there is a reason why we have called it By, of, and for. And the reason is that, firstly, that it is part of the series of the exhibition that we had launched recently, for which the link has already been shared to you in the chat and Arpita already introduced to you. So it says a reflection of Mumbai's past, present, and future. So this exhibition is about archival history and the archival photographs that we had curated from the community, and which talks about the relationship of this community with the natural environment and the coastal systems of Mumbai that we see today. And there is always a sense of normalcy that we attach to it, that we very casually refer to creeks and rivers as nalas, and which is like drainage or sewage channels. So this exhibition was an attempt to re-establish this association and to amplify the voices of Kohlis.
And for the future aspect of it, we thought that it would be very ideal for us to present some of the works which is led by some representatives from the community itself. Like there are a lot of coolies themselves who are trying their best through their work to for the betterment of the community, for the well-being of the community, and trying to bring identity to their community. So we thought it is very important to bring their voices forward and get a initiate a dialogue between them, so that there are other members of the community also who get inspired by their and motivated by their work, and there can be some solution finding. In fact, that is what our work at Bombay 61 revolves around at also. Um, if okay, I can speak in Marathi, but then I think that some of us cannot understand Marathi, but I can stick to Hindi if that is fine. Yeah, let's use both Marathi and Yeah. Yeah, okay. So हम यहाँ पे कुछ कोली समुदाय से लोग बुलाना चाहते थे, जो कोली समुदाय के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, पर वो कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम समझ रहे कि ये प्रेजेंटेशन से आपको कुछ जो आज की पीढ़ी है उनको कुछ मोटिवेशन, यूथ है उनको कुछ मोटिवेशन मिले, उनको कुछ प्रेरणा मिले कि कुछ कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे स्पीकर्स है वो भी दो जनरेशन को अलग अलग बिलोंग करते हैं, मतलब यंग भी है और कुछ सबके काका जैसे एक्सपीरियंस्ड भी है, जिन्होंने काफी सालों से अपने कम्युनिटी के लिए काम किया है। और आई थिंक यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी आज ऐसे हो रहा है कि youngsters educated है, they are educated in different fields, so it is very important कि उनका भी कुछ expertise उनके कम्युनिटी के काम आए और उनके समुदाय के काम आए। ये इसमें हम बहुत ये हमारा बेसिक इंटेंशन था ये इवेंट को लेके। तो जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे 61 भी कुछ काम कर रहा है, तो हमारा जो फिलोसफी है वो हम बॉटम अप अप्रोच जो रखते हैं, मतलब कि कम्युनिटी के साथ काम करके कुछ सॉल्यूशन बनाए, कम्युनिटी के साथ काम करके कुछ मतलब कम्युनिटी का सहभाग होना कुछ भी कोई भी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारा मोटो है। तो उसके लिए हम कुछ जो भी काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे टीम से जय जो है वो उसके बारे में कुछ ब्रीफली बात करें, और एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जय प्लीज। थैंक यू केतकी। तो जैसे केतकी ने कहा कि हम लोग यहाँ के समुदाय के साथ काम करना चाहते हैं, और कोली समुदाय वैसे हम जब भी हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तभी हम लोग जस्ट मास्टर्स से ग्रेजुएट होके फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मतलब ये समुदाय को समझने की, और ये समझते वक्त हमें हम इतने इंटरेस्टेड हो गए उस बारे में कि हम लोग उनके साथ काम करना शुरू किया, हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया, और तभी हमें पता चलने लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें मतलब उनके जो इंटीग्रल पाथ्स है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, वो कभी किसी ने उनको इतने डेप्थ में स्टडी ही नहीं किया था जहाँ से जो लेवल पे उनको करना चाहिए। तो जैसे हमें उनके फिशिंग कल्चर के बारे में हो या फिर उनके कंसर्न्स के बारे में हो, तो वैसे करते करते अभी हम करीबन 6 साल से वर्सोवा कोलीवाड़ा में काम कर रहे हैं, और ये करते वक्त हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ के बारे में भी पता चला, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा एक इशू है, जहाँ पे मछुआरों को फ़िश कैच ही नहीं मिल रहा है आजकल, जिसके वजह से उनका जो व्यवसाय है वो काफ़ी हद तक गिरना शुरू हो गया है। तो वो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर उनके अंदर ना आने की वजह से अभी और काफ़ी हद तक उनके जो एनवायरनमेंट्स है, मतलब जैसे हम जिसे नाला कहते हैं आज के तौर पे, वो नाला ना होते हुए एक किस्म की खाड़ी है, जो खाड़ी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, वो जहाँ पे अपने मैंग्रोव्स होते हैं या फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पे मच्छी अपने जहाँ पे मच्छी एग्स डालते हैं, और मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड्स है बेसिकली वो मच्छियों के लिए। तो ऐसे ऐसे सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोग ने
हम लोग ने उनके साथ मिलके एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया और उसके अंदर हमें वो कंसर्न्स दिखने शुरू हो गए जो जिससे हमें लगा कि उसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये करते वक्त हम लोग ने अभी एक मूवी बनाई है और जिसके अंदर हम लोग ने वर्सोवा खाड़ी का एक काफ़ी हद तक स्टडी किया है, जहाँ पे हमें पता चला है कि उनका जो पूरा फिशिंग को लेके जो कल्चर हुआ करता था, वो पूरा डिपेंडेंसीज वो खाड़ी के ऊपर था। और जैसे जैसे साल व साल बस्ती बढ़ती गई, बम्बई शहर बढ़ता गया, वैसे वैसे इस खाड़ी को नाले के तौर पे देखना शुरू हो गया और वहाँ पे जो जो कोई भी गंदगी थी या फिर पॉल्यूशन उसके अंदर आना शुरू हो गया। तो हमें एक किस्म से हम लोग ये देखना शुरू कर दिया कि क्या हम लोग ये प्रोसेस रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि और इसके अंदर हम हमेशा गवर्नमेंट को दोष देते हैं, लेकिन एज़ people who are living, who are citizens of this particular place, do we have any role to play in it? तो जैसे देखने जाए तो अभी कोली जो कम्युनिटी है उनके पास काफ़ी सारे स्किल सेट्स ऑलरेडी है। जैसे जैसे पानी के बारे में पूरी जानकारी हो तो वो मछुआरे से ज़्यादा और कोई कोली कोली समुदाय से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। या फिर मच्छियों के बारे में जो उसके इकोलॉजी के बारे में जो नॉलेज है वो इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो इस नॉलेज का हम लोग यूज़ करते हुए क्यों ना कोली कम्युनिटी ही इसके बारे में कुछ कुछ करना शुरू करे और इसके लिए हम लोग उनके साथ ये कोशिश में लगना शुरू हो गए कि इसके अंदर हम लोग चेंजेस कैसे ला सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हम एक आपको अभी मूवी दिखाएंगे जो हम लोग ने पिछले 2 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और ये टेपेस्ट्री प्रोजेक्ट है जिससे हम लोग लिंक्ड है, जहाँ पे इवन आईआईटी इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। So I would request Ketki to present that particular movie. Yes, Jay, can you please yes. Sure. मुंबईच्या 7 बेटांवर येथील मूळ रहिवासी कोळी यांची वस्ती होती. परंतु जसे मुंबई शहर एक झाले, ही गावं त्यात हरवून गेली आणि आज केवळ 39 कोळीवाडे राहिले. शहरी विकासाच्या दबावामध्ये बरेच कोळीवाडे जुळवून न घेता आल्यामुळे नाहीसे झाले. वर्सोवा कोळीवाडा मात्र आजपर्यंत सर्वात संपन्न आहे. परंतु वर्सोवा हवामानाशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे ग्रस्त आहे. पाण्याच्या बदलत्या प्रवाहामुळे आणि तापमानातील बदलावामुळे मासेमारीमध्ये घट झाली. मॅंग्रोव्हची जंगले नष्ट होत गेली. परिणामी संपूर्ण प्रकृतीचे नुकसान होत गेले. मलाड खाडीच्या तोंडाशी पाण्याच्या प्रवाहामुळे या जागी बंदर स्थित आहे. हवामानातील बदल, विकासात्मक दबाव, पर्यावरणाची अधोगती आणि बदलत्या आकांक्षा मासेमारीच्या अधोगतीसाठी कारणीभूत ठरले. भरती ओहोटीच्या प्रवाहामुळे सर्व कचरा व गाळ वाहत कोळीवाड्याच्या किनारपट्टीवरील होतो. टेपेस्ट्री प्रोजेक्ट नाश होणाऱ्या पर्यावरणामुळे त्रस्त समाजाशी संवाद साधण्याची संधी निर्माण करते. त्यांच्या समस्या, चिंता समजून घेऊन शाश्वत विकासासाठी परिवर्तन करण्याचा संवाद साधण्याची ही सुरुवात आहे. समस्येचे मुळापासून परिवर्तन करणे हा हेतू आहे. वर्सोवामध्ये परिवर्तनशील प्रोजेक्ट करण्यासाठी कोळी समाजाला आणि इतर एक्सपर्ट्सना एकत्र आणून सभा भरवण्यात आली होती.
या सभेत कोळ्यांनी बदल घडवण्यासाठी बऱ्याच कल्पना दिल्या. त्यापैकी म्हणजे खाडीच्या प्रकृतीमध्ये सुधार आणण्यासाठी आराखडा बनवणे, खाडीतील कचरा काढण्यासाठी जाळ्या बसवण्याचा प्रकल्प, ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंगचा प्रकल्प, मासे विक्रीसाठी ऑनलाईन ऍपची व्यवस्था, अशा बऱ्याच काही कल्पना आल्या. आम्ही सध्या पुढील कार्य राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. खाडीच्या प्राकृतिक सुधारासाठी कोळ्यांच्या मदतीने आराखडा बनवून शासनाकडे प्रस्ताव मांडण्याची योजना आहे. कचऱ्याला साफ करण्यासाठी जाळी लावण्याचा प्रकल्प, ही सर्व कार्य कोळ्यांच्या मदतीने आम्ही राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि वर्सोवाला पुन्हा एकदा संपन्न करण्याचा प्रयत्न. थैंक यू अर्पिता. तो इस किस्म से हम हम काम कर रहे हैं जहाँ पे ये सिर्फ एक इनिशियल आइडियाज़ है, ये कोई फुल प्रूफ आइडियाज़ नहीं है इस समय पर अभी हम लोग और डिस्कशंस कर रहे हैं जिसके अंदर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोली जो यहाँ पे रहने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम बात करके ये डिज़ाइंस को और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगर इस किस्म से अगर हम कुछ बदलाव ला सके तो क्या ये बदलाव सही होगा, ये भी हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो या दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट वी आर वर्किंग. थैंक यू अर्पिता. Ketki, you want to add something to this? Yes, thank you. So I think now we would straight away get to our speakers and give them an opportunity to present their work. तो अभी मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी गणेश नाखवा को, जो हमारे आज के पहले स्पीकर है. Ganesh again, I'm sorry, I'll be saying this in English. Please forgive me for that. Ganesh Nakhwa is from the 7th generation of Koli, from Karanja Koliwada, and he has been socially active in the fishing community in Maharashtra since 2010. He is the vice chairman of the Perth Seine Fishing Welfare Association. After his return from the UK, where he completed his education, he worked as an investment banker for a year until he realized that his heart lay in the fishing industry. After handling fishing boats from his father, he decided to focus on a cooperative fisheries platform with Karanja Fisheries Cooperative Society in 2015, which was also when he was elected by the association. He is now attempting to spread awareness about fishing practices and sustainable methods and connect the fisheries of the city to its consumers. A very warm welcome to you, Ganesh, and we are very excited to see your presentation. So I now hand over the platform. Thank you. थैंक्स केतकी. थैंक्स जय. सर्वांचं स्वागत. मैं हिंदी में ही रखूंगा बिकॉज सब लोग कोली ही है. एंड मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा था, लेकिन आई विल कीप इट शॉर्ट.
एंड एक्चुअली मुझे आज प्रेजेंट करने का कोई शौक नहीं लग रहा है बिकॉज सब कोली है, सबको सबके प्रॉब्लम्स पता है। तो मैं सबसे एक्चुअली इंटरेक्ट करना चाहूँगा आफ्टर सबसे बात करने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आप कोली कम्युनिटी से ऐसे जूम कॉल पे बात हो रही है मेरी। एक दो बार हुई थी बट इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड है बहुत सारे दोस्त लोग भी है, पराग है, आई सी लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर ऑनलाइन। मैं शुरू करता हूँ। एक सेकेंड। सो एक्चुअली मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? कैन समबडी कंफर्म? केतकी, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, yes, your screen is visible, Ganesh. ओके तो सबको बताना चाहता हूँ कि यस, उम्र के 12 साल से मैं फिशिंग में एक्टिव हूँ। देखा जाए तो उम्र के 2-3 साल से ही एक्टिव रहूँगा बिकॉज जब भी मैं बच्चा था तो डैडी ने मेरे को 2 साल की उम्र में समुंदर में फेंक दिया था। आई थिंक हर एक कोली बच्चा वैसे ही समुंदर में तैरना सीख जाता है। एंड आज भी मुझे याद है कि 1990 में समुंदर कितना साफ था और अभी जो समुंदर की हालत है, मैं उस तरह से समुंदर में तैर भी नहीं सकता था। एंड तभी मुझे याद है कि हमारे तभी बड़े ट्रॉलर्स थे। तभी हमारे जॉइंट फैमिली था, हमारे 9 बोट्स थे। बट साथ में ही हमारी छोटी बोट्स भी थी जो हम, जैसे आप वर्सोवा क्रीक के बारे में बात करते हैं, मैं धर्मतर क्रीक में पला बड़ा हूँ जो उरन और रेवस के बीच में है। वो बहुत ही बड़ा धर्मतर क्रीक है और वो भी क्रीक के 2-3 माउथ हो जाते हैं। एंड बचपन से बात किया जाए तो मैं एक्चुअली बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मैंने सब देखा है। मतलब ट्रेडिशनल फिशिंग भी देखा है, क्रिक फिशिंग देखा है, किनारे वाला जो जाल डालने वाला, आखरी वाला, बहुत सारा झीला वाला, पाग वाला। वो जो भी कोली बंधु हो वो समझ जाएंगे मैं क्या भाषा कर रहा हूँ। ये सब मैंने किया है बचपन में। उसके बाद छोटा ट्रॉलर भी था, छोटा डोलनेट भी था, बैगनेट भी था। फिर खुद ट्रॉलर में गया हूँ। फिर जब भी 12 साल का हो गया तभी डैडी ने 99 में प्रोसेसिंग चालू किया। तभी प्रोसेसिंग में भी 12 साल की उम्र में मजे के लिए गया। सोचा था 1-2 दिन में आ जाऊंगा, अब 21 साल पहले की बात है। लेकिन वो फिशिंग ट्रिप इतना बड़ा हो गया कि मेरे को कम से कम 10 दिन लगा। मुझे आज भी याद है, दिवाली का हॉलीडेज था जब भी मैं बॉम्बे से फिशिंग करने निकल गया था मेरी शिवसागर बोट में। दाबोल के पास में गए और बहुत सारा मैकरेल था, लेकिन अचानक से मैकरेल बांगड़ा गायब हो गया और पूरा 10 दिन गया फिशिंग, कुछ हुआ नहीं, अच्छा कुछ कैच आया नहीं। लेकिन वो 10 दिन मेरे को बहुत सिखा दिया। मैं 7th स्टैंडर्ड में था तभी, 6-7 स्टैंडर्ड में। और तब से वो पैशन मेरे से वो रह ही गया कि हर दिवाली हॉलीडे हो, होली हॉलीडे हो, स्कूल के जब भी हॉलीडे हो, मेरे को सिर्फ फिशिंग जाना था। एंड वही पैशन शायद मेरे को यूके से वापस लेके आ गया। एंड ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। सो लास्ट, जैसे कि केतकी ने बताया, मैं 2010 से एक्टिव हूँ। तभी तो मैं पूरा फिशरीज बिजनेस मैन की तरह ही सोचता, पकड़ना है, बड़ा होना है, बिकॉज क्यों फिशरमैन क्यों नहीं बड़ा हो सकता, वो मेरा एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड से ही आया था। बट 2015 से थोड़ा मैं शॉक में चला गया था बिकॉज मैं अकेला ऐसा महसूस कर रहा था ससुंडॉक में कि मैं अकेला पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को कोई कंपनी नहीं है। और इतना सारा प्रॉब्लम्स देखा हमारे फिशिंग इंडस्ट्री में, वो चाहे मिडल मैन हो, वो सप्लाई चेन हो, कंजर्वेशन रिलेटेड हो, साइंस रिलेटेड हो, क्लाइमेट रिलेटेड हो। इतनी सारी फिशरीज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, CMFRI था, FSI था, CIFT था, लेकिन वो कभी फिशिंग और हम में कनेक्टिविटी नहीं था। तो 2015 से जब भी मैं सोसाइटी से जुड़ा, तभी मैं वो लेवल पे भी काम करने लगा, साइड बाय साइड बोर्ड्स भी चलाता था। बट एट द सेम टाइम मैं साइंस से कैसे जुड़ूं, मैं दूसरे फिशिंग ऑर्गेनाइज से कैसे जुड़ूं, उसमें ज्यादा काम करने लगा। इसलिए बहुत लोग मुझे फिशरीज एक्सपर्ट बोलते हैं, बट मेरा बैकग्राउंड फिशरीज एक्सपर्ट का नहीं है, मैं एक नॉर्मल मछुआरा हूँ। लेकिन ये सीख गया मैं साइंटिस्ट के साथ रह रह के, गवर्नमेंट लॉबी के साथ रह रह के, सोसाइटीज में इतना काम कर करके, वो तो मैं सीख गया हूँ अभी। और वही एक्सपीरियंस मैं लोगों से अभी शेयर करता हूँ। जैसे भी आप फोटो में देख रहे हो, मैं ससुंडॉक हो, फेरी वॉफ हो, या फिर मेरे गांव में हो, या फिर महाराष्ट्र में कौन सा भी कोने में हो, मैं जिधर भी जाता हूँ मैं वहाँ के जो फिशर वुमन है उनसे बात करता हूँ, उनसे प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ, कितने सालों से वो मछली बेच रहे, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट्स नहीं है, ये सब के लिए मैं काम करता हूँ। वो मैसेज गवर्नमेंट्स के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे महाराष्ट्र में
उसके लिए फंड्स आए, उसके लिए नए स्कीम्स बसी, उसके लिए नए पॉलिसीज बने। एट द सेम टाइम पिछले 6 साल से जो केतकी बता रही है कि क्लाइमेट कंडीशंस हो रही है, मछली कम हो रही है, तो ऐसे ही चलता रहा तो ऑलरेडी मैं 30 साल का हूँ, 33 साल का हूँ, और जो हार्बर में काम करते हैं वो सारे 50 साल की उम्र में, मतलब ऑलरेडी जनरेशन गैप है। और मेरे पीछे वाले जो लोग हैं वो भी सारे नौकरियां कर रहे हैं, आईटी में जा रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट जा रहा है, कोई और इंजीनियरिंग में जा रहा है, लेकिन फिशरीज में कोई आ नहीं रहा है। तो अगर यही चलता रहा है तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कोली कम्युनिटी का, वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स होगी। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ अगर फिशिंग रहेगा तो कोली रहेगा, अगर फिशिंग नहीं रहेगा तो कोली कम्युनिटी को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। निखिल आनंद करके मेरा एक दोस्त है जो पुलिस एट द सेम टाइम समुंदर पे काम करता था, वो कर रहा है एक्चुअली। उसने मेरे से ये शेयर किया था, आई डोंट नो ये मार्क क्यों दिख रहा है। तो ये 1690 का बॉम्बे का मैप है। हम लोग जो अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे कि क्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है बॉम्बे के लिए, मैं ये एक इमेज से ही आपको बता सकता हूँ कि 300 साल पहले क्रिक्स क्या थी। और जो भी जिसने भी ये मैप्स बनाया होगा उसने मार्किंग किया है। देखो ये फिशिंग स्टेक्स करके ये जो 1 2 3 लाइंस डाले हैं, तो हमारा फिशिंग प्रैक्टिस जो बैगनेट है, जो मेरे मतलब 7 जनरेशन क्या आई थिंक ज्यादा रहेगा, बट लिखा नहीं है इसलिए पता नहीं है, बट 7 जनरेशन के दादाजी के नाम तो हमें पता है, बट उसके पहले से भी पता रहेगा। तो इतना बड़ा क्रीक था, इतना एरिया फ्री था, और सारा जो फिशिंग एक्चुअली 1971 का भी फिशरी स्टैटिस्टिक्स अगर मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे पास है वो डॉक्यूमेंट, बॉम्बे लाइब्रेरी से ही लिया था। तो 70% फिश अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो बॉम्बे में ही पकड़ते थे। तो इतना सारा मछली बॉम्बे आइलैंड्स के आसपास था कि तो किसी को आस पास दूर जाने की जरूरत भी नहीं थी। एंड नॉट ओनली वर्सोवा, माहिम, वो करंजा, सबके सबके लिए वो एक बूंद था, बट अभी वो कुछ बचा नहीं है। आप देखो ये माउथ कितना बड़ा था जो हम वर्सोवा की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो धर्मतर का बात कर रहे हैं वो कितना बड़ा था, वाशी का जो है एलिफेंटा के आसपास वो माउथ कितना बड़ा था। तो एंटायरली आप देखा जाए तो नई मुंबई पूरा पूरा वेटलैंड्स या फिर मैंग्रोव एरिया पे ही बसा है, पूरा भराव करके बना दिया है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट सो मेनी इयर्स की ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स डिस्ट्रॉय किए हैं बॉम्बे को बड़ा करने के लिए। एंड अभी जब भी मछली नहीं मिल रही है तो हम सारे फिशरमैन, हम सारे कोली कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि कोई बोलता है कि ट्रॉलिंग वाला खत्म कर रहा है, ट्रॉलिंग वाला बोलेगा एलईडी वाला खत्म कर रहा है, एलईडी वाला बोलेगा चाइना वाला खत्म कर रहा है। तो एक्चुअली मछली ना होने से हम कम्युनिटी में लड़ रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में बात करेंगे। जो मैं बता रहा था कि बचपन में मैंने किसी क्या फिशिंग प्रैक्टिस की थी, तो खाजन बोलते थे, जिला, पगौली, वावरी, आखरी। आज के पीढ़ियों को अगर ये सब फिशिंग वर्ड्स यूज करो तो उनको पता भी नहीं रहेगा कि ये सब फिशिंग प्रैक्टिसेस क्या है। उनको शायद ट्रॉलिंग, पर्सिसिन, बैगनेट यही पता रहेगा, बट ये सब भी फिशिंग प्रैक्टिसेस पहले होती थी। हमारे यहाँ पे अभी भी होता है, बट वो लेवल का कैच नहीं होता। ऑन द राइट साइड में देख सकते हो, जैसे वर्सोवा में प्लास्टिक है, सिमिलर इज द इशू इन धरमतर। एंड मैं सिर्फ धर्मतम का बात नहीं कर रहा हूँ, ये हालत सारा क्रिक्स का है, बेलापुर का हो, वाशी का हो, कल्याण डोंबिवली साइड का हो। एक्चुअली देयर वर 276 फिशिंग विलेजेस अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अभी लास्ट स्लाइड में किसी ने बताया कि ओनली 39 बचे। ये कुछ इमेजेस है जो आसपास के गांव में अभी भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, कि उल्वे के गांव के पास खाजन जहाँ पे होता है, एक छोटा फिशरमैन अभी भी झीला से क्रैब्स पकड़ता है। सो देर आर फ्यू प्लेसेस वहां पे फिशिज लाइवली हो सकता है, बट जस्ट हमें खाड़ियाँ साफ करनी पड़ेगी। ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स नोट डाउन किए, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट सबके प्रॉब्लम सेम है, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में ये डिस्कस कर सकते हैं। बट ये स्लाइड जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने जो सिर्फ महाराष्ट्र को देखते हैं, बट आई स्टडी अक्रॉस इंडिया। तो महाराष्ट्र पिछले 10 सालों में देखो, जब 2011-12 में हम लोग करीब 4.25 लाख टन मछली पकड़ते थे, मतलब सब कुछ ठीक था। बट लास्ट 10 साल से जो क्लाइमेट चेंज और बाकी सब इश्यूज से जो हमको इफेक्ट हो रहा है और जो पुलिस को इफेक्ट हो रहा है, वो क्लियर है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ एंड देन हाफ फिशिंग प्रोडक्शन कम हो गया। मतलब अभी हम लोग सिर्फ 2 लाख टन मछली पकड़ रहे हैं, मतलब 30% भी नहीं पकड़ रहे पिछले 10 साल से। तो उसी का इफेक्ट गुजरात बड़ा हो रहा है, वो ज्यादा पकड़ रहा है, कर्नाटका बड़ा हो रहा है, वो ज्यादा पकड़ रहा है, तमिलनाडु ज्यादा पकड़ रहा है, वो बड़ा हो रहा है। तो देखा जाए तो बैलेंस ऑल इंडिया फिशरीज का सेम ही रहता है, मछली कम ज्यादा नहीं होता है, वो बैलेंस रहता है, बट हमारा शेयर कम हो रहा है। सो जैसे केतकी और जय ने बात किया कि उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस महाराष्ट्र में एक्चुअली 70 साल से हुए ही नहीं है। आप वर्सोवा में देखो, पूरा ओपन फिशरीज है, बर्फ बनने के लिए जगह नहीं है, डीजल बनने के लिए जगह नहीं है, बोट लगाने के लिए जगह नहीं है।
एट द सेम टाइम पूरा 720 किलोमीटर महाराष्ट्र का यही प्रॉब्लम है, किसी के पास फैसिलिटी नहीं है तो कोली या फिर फिशरमैन बड़ा कैसे होगा। तो आई थिंक हमको जो काम करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होगा। अगर हमारे कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है तो हम आगे जा सकते हैं, और एल्स क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन और ये जो भी हो, फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एटलीस्ट मैं थोड़ा सेटिस्फाई हूँ कि करंजा में पिछले 70 इयर्स में हम लोग जो फाइट कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम एक सागरमाला के थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फाइट करके एक प्रोजेक्ट लेके आए, और वही 6 साल से मैं काम कर रहा था। और जो केतकी मुझे हमेशा वुमन एम्पावरमेंट की बात करी है, बिकॉज हमारे गाँव में एक्चुअली ट्रेडिशनल फिशिंग नहीं होता है, तो वुमन लोगों के लिए जॉब ही नहीं बचा है, कुछ करते ही नहीं है वो लोग। तो ये नया हार्बर आएगा तो एटलीस्ट 10,000 fisherwomen from Raigad and the nearby area will get an opportunity to work at the harbor at some level। तो यही मैं बात करना चाहता हूँ हर एक फिशिंग विलेज के लिए, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब जाके वहां पे लाइवलीहुड बन सकता है। ये सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, कोस्टल रोड है, ट्रांस हार्बर है, तो मतलब कुछ भी डेवलपमेंट हो तो चलो कोलिस का एरिया छीन लेते हैं। हम लोग सिर्फ लैंड का बात करते हैं, जस्ट टू वांटेड टू शो टू ऑल द ऑडियंस कि समुद्र में उससे भी भयानक परिस्थिति है। दिस इज एन एरिया इक्विवेलेंट टू 300 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ महाराष्ट्र वाला एरिया ऑयल रिगिंग और ऑयल सप्लाई ऑयल फाइंड करने के लिए जिया जाता है। मतलब हम जमीन पे भी लड़ रहे हैं जगह के लिए, फिशिंग के लिए, एट द सेम टाइम जो हमारी ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स है वो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए लेते जा रहे हैं। तो मतलब जगह कम हो रही है और मछुआरे बढ़ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द साइक्लोन्स। मैं पिछले 10 साल से पूरा स्टडी कर रहा हूँ कि कितने साइक्लोन्स आए, कितना फिशिंग डेज कम हो गया। तो हमको भी ये खुद को पहचाना है कि एक्चुअली ओवर फिशिंग है या हमारे फिशिंग डेज कम हो रहे हैं। तो मछली क्यों नहीं मिल रहा है, इसका 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 बहुत बड़ा साइंस है। कोई बोलता है कि नॉर्थ पोल की तरफ मछली जा रहा है, विच एक्चुअली आई आल्सो बिलीव, बिकॉज लास्ट 3 साल से जो पोरबंदर और वेरावल वाला एरिया है, जो विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1000 किलोमीटर अवे, वहां पे सबसे ज्यादा फिश मिल रहा है। सो क्वेश्चन एंड आंसर में ये डिस्कस करेंगे हम। आई थिंक दैट्स फ्रॉम मी, केतकी। Apita? Yes, thank you. This was I really, hope I really finished in interesting. 15 minutes. Yeah, sorry. I'm not able to find Kate. Here she is. Thank you so much. Thank you, Ganesh. That was very insightful, and really appreciate your time for this. We will take the questions in the end. So, and please post your questions in the chat box. हम बाद में सबका हमारे पास अभी और 2 स्पीकर्स हैं, वो जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म होगा तब हम साथ में क्वेश्चंस लेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए। तो we will now move on to our next speaker, Mr. Rajhans Tapke। तो उनका एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। मिस्टर टपके 6th जनरेशन बोल सकते हैं कोली का। he's from Versova, Kolivada। He's a fisherman and a historian at heart, holding an immense knowledge of the Koli and Kolivada history in Mumbai. Being on the Fishermen Cooperative Society Committee since 1990, he has also helped other community members from multiple Kolivadas to form their own fishing cooperative society. He was also the president of the National Association of Fishermen from year 2009 to 2012. He started with a monthly newspaper called Sagar Shakti in 2002 and is circulated among the Kolis and other fishermen communities all over Maharashtra. He's a pioneer of Versova Seafood Festival, which was started in 2005 and is one of the largest community-led food festivals in India. And to add to that, Mr. and Mrs. Tapke also, Harsha Tapke, they are working towards promoting the Koli traditional cuisine using their entrepreneurial and culinary skills. So I welcome Tapke Kaka. तुमचं खूप स्वागत आहे. So I would like to now hand over to him. Please, Tapke Kaka, you can. So Jay will share a screen for him.
Is he there? I think you'll have to unmute him. Tapke Kaka, I think Arpita, you need to unmute Tapke. हॅलो हॅलो, हॅलो येतोय आवाज काका? येतोय ना? हा हो येतोय. सगळ्यांचं सगळ्यांना तुम्हाला धन्यवाद देतोय. सभी लोग जो ज्वाइन हो गए हैं उन्हीं को भी मैं धन्यवाद करता हूं. दरअसल कोली कम्युनिटी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में कोली कम्युनिटी जो कोस्ट लाइन में है वो कम्युनिटी जो है वो फिशिंग करते हैं, और जो इंटीरियर एरिया में है वो रिवर साइड या तालाब के साइड वो फिशिंग करते हैं, और कोई अंदर होगी तो वो शिकार करती है. तो ये कोली कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को जानती नहीं, इसलिए तो हमने सागर शक्ति जो मैगजीन है वो स्टार्ट किया. एडवोकेट सचिन ठाणेकर, घनश्याम पाटिल, दत्ताराम पुखले, ऐसे मेरे सब फ्रेंड मिलके हमने शुरू किया. शुरू करने का मकसद ये था कि हम जब भी मैं स्कूल टाइम से ही सोशल एक्टिविटीज में था, और कम्युनिटी के जब भी इश्यू होते हैं जैसे कि सीताराम धानू होंगे, भाई बंदरकर होंगे, कांति कोल्ली होंगे, ये सब सुलोचनाताई ठाणेकर, शंकरराव ठाणेकर, ये सभी बुजुर्ग नेता थे, या फिर नाका भगत जो कोली समाज के पहले एमएलए थे. तो इन सभी की मूवमेंट में मैं था, तभी बच्चा था. Jay, Ketkit, have we lost sound? Yeah, I think so. I think there is a weak network on his part. I Yeah. think. Let's wait for him. I'll just call him. Can we move to the next speaker in the meantime? Yeah. I think we can move to Vikas. I think he's back. One sec. Arpita, can you just unmute him? इसलिए हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया ताकि पॉलिटिकली अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में आना जरूरी है. पॉलिटिकली अवेयरनेस नहीं होने के कारण हमारे बहुत सारी समस्या वैसी है जो पहले 50 साल में थी, वही समस्या आज भी है. और यही कारण है कि हमने जब सागर शक्ति शुरू किया 2002 में, हर गांव में उसका जो एनुअल फंक्शन होता है, हर जगह अलग अलग जगह पे होते हैं. रायगढ़ में जब भी हुआ था तभी अंतुले साहब, एक्स मिनिस्टर अंतुले साहब जब एमपी थे वहां पे, उन्होंने होस्ट किया था. तो इस तरह से सब जगह पे, अमरावती हो या पालघर हो, इस जगह पे अभी इस पिक्चर में आपको दिखते हैं पालघर के जो एमएलए है राजेश पाटिल, बल्कि वो भी फिशरमैन है, मगर वो ट्राइबल खुद को मानते हैं, वो ट्राइबल ही है, मल्हार कोली है. तो ये सब कोली समाज में बल्कि फिशिंग ही उनके बिजनेस है, मगर उनके आपस में
एक ही नहीं बन पाती। तो यही सागर शक्ति का मकसद रहा। और ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं कि आजाद मैदान में 2018-19 में मच्छी का दुष्काल रहा पूरा महाराष्ट्र में, और हम लगातार शासन से मांग कर रहे थे कि मत्स्य दुष्काल पर हमें कुछ तो भरपाई दीजिए, सानुग्रह अनुदान दीजिए। मगर शासन के खिलाफ ये सब महिला और बड़ा जन समुदाय आजाद मैदान में लास्ट ईयर इकट्ठा हुआ था। तभी जो पैकेज आज जो दिया जा रहा है, उसी के कारण आज पैकेज दिया जा रहा है। वो भी पैकेज जब भी हमारा 2100 करोड़ रुपीस मच्छीमारों की नुकसान हुई, उसके बदले उन्होंने सिर्फ 65 करोड़ दे दिया है। तो इस तरह से पॉलिटिकली अवेयरनेस कम्युनिटी में आना जरूरी है। हम हमारी लीडरशिप आज तक डेवलप नहीं कर पाए। हमारी कम्युनिटी की एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम हमारे ही नेता या हमारा ही एजेंडा एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए। तो यही एक कारण बन जाता है कि जब भी हमारा कोई युवा नेता आ गया है या कोई भी विलेज से कोई भी कार्यकर्ता आ गया है, तो उसी के साथ 5 लोग पीछे रहते हैं उनको नाम रखने के लिए कि ये काम ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो बल्कि जब भी दूसरा कोई कम्युनिटी से आगे आ जाता है तो उनके पीछे हम कोई दे या ना दे, उनको सपोर्ट करने के लिए भाग दौड़ी चली जाती है। तो इस तरह से कम्युनिटी में एक बर्ताव है। यही कारण था कि अभी मैं सोचता हूँ कि हर कम्युनिटी को फाइनेंशियली साउंड करना। वो कैसा है कि जैसे कि मैं सेंट्रल बैंक से मत्स्य कन्या योजना बनाई। हम देखते हैं कि मुंबई की जितनी भी महिलाएं रिटेल मच्छी बेचती है मार्केट में, तो वो क्राफ्ट मार्केट या होलसेल मार्केट में चली जाती है, वहां से मच्छी उधार लेती है। 2-3 दिन के बाद वो पेमेंट करती है, तो ऑफकोर्स उनको वो जो मच्छी है वो महंगी मिल पड़ती है। तो इसी कारण हमने सीसी लिमिट जो मच्छी महिलाओं के दे दिया 50,000 विदाउट एनी सिक्योरिटी, जिससे ये हम कहना चाहते थे कि 3 दिन में मच्छी जो खरीदते हैं करीबन 50,000 के मानेंगे, तो वो कैश लेके खरीदी करें, ताकि उनको जो वहां पे घाटा आता है उधारी लेने में, वो उनका सेव हो पैसा। तो इस तरह से जब हमने ये स्कीम्स स्टार्ट चालू किया, करीबन 5,000 महिलाओं ने इसका लाभ लिया था। और जब भी हम सोचते हैं कि फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड योजना दी थी, तो यदि वो फार्मर को उनकी जो खेती है, खेती के दरमियान उनको जो फाइनेंस किया जाता है, सीसी लिमिट दिया जाता है, तो मछुआरों को क्यों नहीं। इसके साथ कोली महासंघ के अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल और हम हमेशा दिल्ली में कृषि मंत्रालय में जाके आखिर 2019 में मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर दी। जैसे कि ट्रॉलिंग फिशिंग होगा तो 3 लाख तक उनको सीसी लिमिट मिलता है, डोल का धंधा होगा 1.5 लाख तक मिलता है। तो मेरा कहना है कि जब भी फाइनेंशियल सपोर्ट इस कम्युनिटी को मिलेगा, तभी ये धंधा कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे मैं ये पिक्चर में आप देखते होंगे, कोई भी कोस्ट लाइन की बैंक फिशरमैन को कोई भी लिमिट देने के लिए तैयार नहीं है। मगर हमने बैंक के अधिकारी को, जो लेडी दिखते हैं वो बैंक के मैनेजर है, और जो मेरे साथ में जो बैठे हैं वो भी बैंक के मैनेजर है। ऐसे बैंक के मैनेजर को हमने हमारी क्या सिस्टम है, कैसे फिशिंग करते हैं, हमारे क्रू मैन कैसे है, हमारी मच्छी कैसे बेची जाती है, हमें मच्छी बेचने के बाद पैसा कितने दिन के बाद आता है, ये सब इक्वेशन उनको साइड में जाके बताया। तभी अभी स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे विलेज में बहुत सारे फिशरमैन अभी स्टार्ट किए हैं। मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक वालों ने भी फिर वहां पे हमने मीटिंग करवाई, तो उन्होंने भी मान्य कर दिया है कि हम भी फिशरमैन को सीसी लिमिट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे केसीसी के अंतर्गत। तो इस तरह जय नेक्स्ट, इस तरह जैसे ही यहाँ के महाराष्ट्र के पहले कोकण के फिशरमैन मिनिस्टर बने,
जैसे ही मिनिस्ट्री में आ गए हैं शेख साहब, तभी हमने उनसे मुलाकात की और हमारी जो बातें थी उनको, क्योंकि हमारी बातें ऐसी होती है, हम कोई भी हमारा जो नेता है वो धोरणात्मक निर्णय के बारे में कभी बात नहीं करता। अभी जो इमीडिएट जो हमारी समस्या निर्माण होती है उसी के बारे में ज्यादा सोचता है, उसी के बारे में बात करता है। मगर वो जो समस्या है वो हमारी कायम की नेस्त नाबूद होने के लिए धोरणात्मक निर्णय जो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए वो निर्णय होते नहीं, इसलिए हमारी समस्या बैक टू बैक वैसे की वैसे आगे आगे चलती आ रही है। तो हम हमेशा यही करते हैं, इसलिए आज अभी जो है तोमर साहब है केंद्रीय कृषि मंत्री, यदि फार्मर है तो उसको इनकम टैक्स रिबिट है, मगर फिशरमैन को इनकम टैक्स रिबिट नहीं है। तो हमारी ये मांग रही थी कि भाई हम फिशरमैन है, फार्मर और फिशरमैन में दूरी मत कीजिए। जो फार्मर को सुविधा दी जाती है वो सुविधा हमें फिशरमैन भी चाहिए, इसलिए हमें कृषि का दर्जा दीजिए और जो कृषि के लिए जो सहूलत है वो हमें भी देनी चाहिए। तो इस तरह से मांग लेके हम गए थे और उन्होंने वो भी सरप्राइज हो गए कि उन्हें भी सरप्राइज लगा कि अरे फिशरमैन को कृषि का दर्जा नहीं है और इनकम टैक्स में कोई भी राहत नहीं है। तो इस तरह से उनको बात समझ में आई, उन्होंने कहा है कि और अच्छी तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ये भी कोली महासंघ रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में जो शमुकानंद हॉल में एक मेला हमने आयोजित किया था, जिसमें बहुत सारे निर्णय हुए थे, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन या धोरणात्मक निर्णय होने में और भी थोड़ा सा समय जाएगा, मगर उसी पीछे हम पड़े हुए हैं। अभी जब ये सागर शक्ति निकाला तो बहुत सारे लोग रिपोर्टर हमें नहीं मिल रहे थे, मगर हमने ही हमारे कम्युनिटी से बहुत सारे लेखक तैयार किए जो आर्टिकल लिखते हैं। वैसे ही हम ओबामा की बात करते हैं कि कोली गाने पे ओबामा नाचे थे, आज भी कोई भी कोली संगीत होगा तो वो संगीत बजते ही किसका भी पैर नहीं रुक पाता। मगर इसकी जो कोली कम्युनिटी और कोली गाने की परंपरा है वो कहाँ तक थी, कहाँ है और कहाँ तक चली जाएगी उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं था। मगर हमारे जो मित्र है भगवान दांडेकर, उनको काम सौंपते ही उन्होंने पूरा रिसर्च किया और कोली गाण्यांचा झंझावात ये आर्टिकल लगातार हमने 8 इश्यू में पब्लिश किए थे, जिससे पता चला कि कोली गाना कौन सा कोली गाना है, उसका राइटर थे, कौन कवि थे, किसके आवाज में वो गाना गाया। तो इस तरह से की जानकारी पूरे महाराष्ट्र को इस कारण मिल रही है। फेस्टिवल तो हम देखे हैं, जैसे फेस्टिवल, क्योंकि हमें आज भी याद है कि कोई भी हमारे घर में कोई भी फिशरमैन के घर में मच्छी खाता है वो आदमी कभी भी भूलता नहीं, वो दौड़ाएगा कहीं भी मिलेगा तो हमने आपके घर में मच्छी खाई है। तो ये जो यादगार रहती है ये क्यों होती है, क्योंकि कोलियो लोगों के एक तो फ्रेश फिश और उनकी सिस्टम बनाने की मसाला, यही कारण है जो कोलियोस के हाथ से बनाया हुआ मच्छी बहुत ही रुचीली टेस्टी रहती है। तो यही हमने फेस्टिवल जब भी स्टार्ट किया तभी हमारे भी महिलाएं लोग तैयार नहीं थे कि इस तरह से फिश नहीं बेचेंगे हम, मगर जब भी जैसे ही उनको शुरू हुआ तभी हमने फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हुआ। मगर सक्सेस होने से काम नहीं चलता। जैसे कि आप इडली और डोसा, मसाला डोसा या इडली भारत के हर कोने में मिलता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि ये कोली समाज की मछली बनाने की प्रक्रिया जो है हर रेस्टोरेंट में मिले, हर घर में मिले। जब भी हम सोचते हैं फेस्टिवल हो गया है, मगर फेस्टिवल के बाद भी ये जो फेस्टिवल है हर घर में होना चाहिए। तो जब भी हम दूसरों की बात करते हैं तो हमने हमारे घर से शुरू किया। मेरी वाइफ हर्षा टपके ने उसको इंटरेस्ट लिया और अभी हम बहुत सारे 5 स्टार होटल में हमारे महिलाओं की उनकी प्लेटफॉर्म, उनका बड़ा बड़ा किचन, 5 स्टार होटल के किचन कैसे होते हैं और वहां पे भी कुक करने की जो अनुभव है वो भी आज हम बहुत सारे महिलाओं को दिया है इसी कारण। और बहुत सारे सारा स्टार होटल हो या और भी 5 स्टार होटल हो, ये बेंगलोर के होटल का फोटो है।
तो इस तरह से जहां भी मौका मिलता है हमारे कोली समाज के महिलाओं का जो खाना बनाने का सिस्टम है वो उसे हम दौड़ाते हैं। आज भी देखे जाएगा तो वर्सोवा जैसे विलेज में करीबन 2000 रोटी भाकरी, कोली समाज की भाकरी जो है दो एवरी डे 2000, सुबह 2000 शाम को 2000 बेचा जाता है। करीबन 15 से 16 कट्टे होंगे जो रोटी बनाती हैं, और वो रोटी बहुत सारी खाली कोली ही नहीं, तो वहां पे आए आए हुए आजू बाजू में रहने वाले लोग भी वो रोटी बहुत आराम से नहीं तो बहुत आनंद होके खाते हैं। तो ये इस तरह से खाना मेरा एक सपना है कि हर कोली के घर में हमने हर कोली के घर में एज अ टूरिस्ट कोई भी कस्टमर आए उनके घर में पे करे और वहां से ताजा मछली और भाकरी खाने का अनुभव ले। इस तरह से प्रयास हमारा चालू है, और जो भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए बैंक की तरफ से हम उनको देने की ट्राई करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो है कम्युनिटी आज बहुत सारी समस्या जानते हैं। आपको पता होगा कि आज ही दादर मार्केट होगा या क्राफर्ड मार्केट होगा, जहाँ पे मछुआरों महिलाओं को बैठने नहीं देते। मैं आपको एक किस्सा शेयर करूंगा। रामकृष्ण केनी हमारे लीडर थे। उन्होंने उनके साथ हमने मूवमेंट शुरू किया था कि हर महिलाओं को जो मच्छी मार्केट में वो जिस जगह पे बैठती है उस जगह का उनको कायम स्वरूपी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये हमने मूवमेंट सक्सेस किया और बहुत सारे मार्केट में महिलाओं को लाइसेंस दिया जाता है। जैसे कि एक किस्सा जरूर मैं शेयर करूंगा कि लालबागचा राजा, गणपति लालबागचा राजा आप सभी को मालूम है, मगर आपको लालबाग का राजा कैसा उत्पन्न हुआ ये भी जानना जरूरी है। लालबाग में जब भी मच्छी बेचने वाली हमारी महिलाएं थी, तभी वहां का कारपोरेशन हमेशा उनको शिफ्ट करता था। ये साल इधर बैठो तो दूसरे साल दूसरे कोने पे बैठो। तो वहां की महिलाएं बहुत हैरान हुई थी। जब भी चिंचपोकली में गणपति उत्सव हो रहा था, तभी हमारी जब सब महिलाएं चिंचपोकली के गणपति के पास चली गई और उनसे प्रार्थना की कि यदि हमारा मार्केट कायम परमानेंटली मार्केट हमें मिलेगा तो हम आपकी स्थापना करेंगे। और लालबाग में जब भी वो परमानेंट मार्केट बना, तभी उन कोली महिलाओं ने वहां पे गणपति की मूर्ति की स्थापना की, और वहीं आज लालबाग का राजा यानी पूरे भारत भर में फेमस है। तो ये जो सिलसिला है ये अभी भी हमारा खत्म नहीं हुआ। क्राफर्ड मार्केट में हमारा जब भी फिशिंग मच्छी बेच रहे थे और वहां से हमको हटा दिया था, छत्रपति शिवाजी मंडी जो बोल रहे हैं, वो जो बीएमसी ने इमारत बांधी थी, तभी भी उस इमारत में उस बिल्डिंग में हमें जाने के लिए रोका जा रहा था। तभी भी मूवमेंट हुआ था। गणपतराव कोली तभी हमारे सांगली के विधायक थे, और कोली समाज के नेता लोगों ने उस वक्त आंदोलन किया था। सुलोचनाताई ठानेकर उसमें लीडिंग में थी, शंकरराव ठानेकर थे, और उस वक्त वापिस हमें वो छत्रपति शिवाजी मंडी मिली थी। यानी कि आज भी हमारा जो सिलसिला है झगड़ा करने का, झगड़ा करवाते हैं शासन, और कहीं भी हमें परमानेंट जगह नहीं दी है। क्योंकि जब भी मुंबई का निर्माण की बात होती है, निर्माण की बात में सब एमिनिटीज लगा देते हैं, कहाँ कौन सा एमिनिटीज होना चाहिए, मगर डेवलपमेंट के इस माहौल में फिश मार्केट कहाँ होना चाहिए या फिशरमैन को एमिनिटी क्या होनी चाहिए, उसका कभी भी जिक्र नहीं किया जाता है। थैंक यू सो मच। एक लास्ट जो आपका वीडियो प्ले करना चाहते हैं, उसके बाद
Then I'll introduce our next speaker, Vikas Motiram Kohli. I'll just make last ये video. A seafaring community, the Kolis are known to have settled here in the 12th century. Their villages, or Koliwadas as they are called, are by the sea and in different pockets of the city. One such village, or Koliwada, is that of Versova in North Mumbai. The name Versova was derived from a local word Versava, which meant to rest, and this was the port where ships docked for a bit. Yeah, sorry, I think the sound is not there. I mean, you're not able to hear the sound, so I'll just I've increased the volume. The volume is full, but somehow I'm not sure why you cannot hear that. I'll just post the link so that everybody can view the video whenever possible. Sorry about that. I'll just share the link. Yeah, I have posted the link in the chat box. You can view it whenever. Yeah, thank you. Thank you, Tapke Kaka. That was a very great presentation and lot of work that has gone into the community in every possible way. And now I would like to invite our last speaker for the day, Vikas. Vikas Motiram Kohli. I'll just introduce him quickly. Vikas works closely with the fisherfolk community and he is working president for the National Association of Fishermen, Maharashtra State. He runs an NGO called Bhumiputra Foundation, whose core belief is rights for the right people. During the pandemic, Bhumiputra Foundation has worked with the fishermen community and cyclone affected for the distribution of rationing kits. Vikas works with the youth for entrepreneurial journey and generating new opportunities in modern trade, which will help circular economy in fisherfolk community. Vikas has started an initiative called Project Red Dot in 2018, which educates women and sanitation workers about the safe disposal of sanitary waste. He has distributed more than 200,000 free Project Red Dot bags for women, did more than 425 plus programs across various cities of India. His ultimate aim is to keep these useful bags free for women across the urban cities of India. So welcome, Vikas. Please, I would now request you to take charge of the screen and start with your presentation. Thank you. Thanks, Ketki. I'm thanking Bombay 61 Studio and MMM inviting me as a guest speaker. I'm thankful for the people from my community also. मेरे जो समाज से जुड़े हुए हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरे. So I think I will keep also in हिंदी. सब हिंदी में बात करें तो मैं भी हिंदी में ही बात करूँगा ताकि सबको अच्छा रहे. My screen is visible, right? मेरी screen visible है? Okay. So भूमिपुत्र फाउंडेशन एंड बॉम्बे 61 केतकी और जय के साथ काफ़ी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 3.5 years नाउ. 3-3.5 साल से हम काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स वर्सोवा कोलीवाड़ा में जय एंड केतकी ले रहे हैं. जैसे केतकी ने मेरा इंट्रोडक्शन किया तब उन्होंने बताया कि वी वर्क, हम जो काम करते हैं भूमिपुत्र फाउंडेशन में उसका मेजर कोर फोकस है कि राइट्स फॉर द राइट पीपल. जो अपने जो राइट्स है, जो मूल निवासी है यहाँ के, मूल भूमिपुत्र है, मेट्रोपॉलिटन रीजन जो मुंबई महानगर रीजन है उसके, तो उसके लिए हम
जो भी लड़ा दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वी आर डूइंग थ्रू भूमिपुत्र फाउंडेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे राजहंस जी ने भी बताया कि हाँ कैसे वो यूथ को गाइड करते, तो राजहंस जी का मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनका काफ़ी गाइडेंस हमें रहता है। गणेश नाकवा को स्पीकर है आज यहाँ पे, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे उन्होंने बताया कि वो सजेशंस देते हैं, तो हमें भी जैसे एनएफडीबी के कुछ, एनएफडीबी एज एन नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है या स्टेट फिशरीज है, वहाँ के सिम्पोसियम्स हो या वहाँ पे स्टेक होल्डर्स मीटिंग हो, वहाँ पे इनविटेशन होता है, तो कम्युनिटी के साथ काम करने के बाद हमें वो काफ़ी फीडबैक्स मिलते हैं जो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास पास ऑन करते हैं ताकि वो उनको स्कीम बनाने मिल सके। तो अभी हमारा करंटली फोकस है कि हम कैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम करें ताकि ये रीजन बढ़ते जा रहा है। मेट्रो MMRDA रीजन जो है अभी काफ़ी फैल रहा है, अभी अलीबाग तक, अलीबाग और वहाँ नॉर्थ में पालघर तक, जो कि काफ़ी मछुआरा समाज दोनों तरफ काफ़ी संख्या में है। सो भूमिपुत्र फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो 2 तरीके के काम कर रहा है, एक ऑनलाइन ऑफलाइन। काफ़ी समाज में, मतलब कोली समाज में होता है कि बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं जो ऑफलाइन होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, बट कहीं पे जैसे राजेश जी ने बताया कि उन्होंने जब सागर शक्ति स्टार्ट किया था तो कहीं पे मछुआरा समाज की जो न्यूज़ होते थे ये दबाए जाते थे या जो भी है, तो उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म मिलने के लिए काम किया। तो आई थिंक अभी जो ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों तक रीच पहुंच सकती है, आज हम जूम जैसे कॉल पे सब एकत्रित आए हैं, यहाँ पे इतने लोग आए एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे गणेश जी ने मेंशन किया कि इतने सारी संख्या में मैं भी आज पहली बार कम्युनिटी जूम मीटिंग पे आई है, तो हमें बॉम्बे 61 और MMM का थैंक्स बोलना चाहिए। तो ऑनलाइन काम होना भी जरूरी है ताकि बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचती है, और ऑफलाइन तो हम करते हैं तो काफी संस्थाएं ऑफलाइन काम करती है। तो मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जो हम करते हैं। जैसे ऑनलाइन में हमने स्टार्ट किया था भूमिपुत्र फैक्ट्स, जो राजन सिंह ने एक चीज बताई कि लालबाग का राजा जो है वो इंडिया भर में फेमस है, बट बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसकी स्थापना कोली लोगों ने की थी, कोली मार्केट की वजह से की थी। तो ये जो फैक्ट्स है ये बहुत लोगों तक पता नहीं है, तो भूमिपुत्र फैक्ट्स एक जरिया हमने शुरू किया था कि ताकि उससे ऑनलाइन चीजें लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उसका अच्छा चीज हमें मिला, लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। जैसे कोलाबा नाम है, ये कोलाबा जो है ये कोलभाट नाम से आया है। भाट मतलब वस्ती जहाँ पे लोग रहते हैं, और कोल मतलब कोली समाज के लोग। तो ये कोलाबा जो नाम है वो कोली समाज की बस्ती थी एक टाइम पे। आज मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन बना है, अलग अलग, ये मुंबई इटसेल्फ एक छोटा सा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, बट यहाँ के मूल निवासी है जो कोली है। तो उनके जो फैक्ट्स है वो हम लोगों तक भूमिपुत्र फैक्ट्स के जरिए ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा रहे थे। भूमिपुत्र स्पीक्स हमने शुरू किया ताकि जैसे एक्सपर्ट्स है गणेश नाखवा, राजहंस टपके, ये समुदाय से जुड़े हुए हैं, कोली समाज से जुड़े हैं, तो उनकी जो बात है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। तो हमने भूमिपुत्र स्पीक्स का ऑर्गेनाइज किया, उसके 2 सीजन हुए जिसमें एवरी सीजन देयर आर 7 speakers and we could able to reach to the lot of audiences, और उसके जरिए हम ये काम कर पाए। उसमें सिर्फ समुदाय के लोग नहीं थे, काफी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो कि भूमिपुत्र को राह बता सके, जैसे इंडस्ट्रियल कमिश्नर आए, फिशरी के एक्सपर्ट्स आए, साइंटिस्ट आए, एंड दे हैव गाइडेड, उन्होंने लोगों को गाइड किया। मेड बाय एग्रीकोली भी ऐसा एक ये था, जैसे राजन जी ने बताया कि यूथ ने यहाँ पे आना चाहिए, ये जो क्यूजिन है ये वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। जैसे डोसा इडली हर कॉर्नर में मिलता है, क्या फिश और ये होना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो मेड बाय एग्रीकोली है ये लोगों को हेल्प करे, ये छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप से या छोटे जो मछुआरे हैं उनको एजुकेट करे अबाउट द ब्रांडिंग, कि ये ब्रांड आप बना के कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो आज स्विगी है, जोमेटो है, ये जो सेवाएं उपलब्ध है उसका छोटे से छोटे मछुआरों तक उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उनको कैसे रजिस्ट्री करना है, उसका ब्रांड कैसे बनाना है,
ये हम मेड बाय एग्रीकोली की तरह इससे हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। उसमें हमने जब शुरू किया तो अराउंड 1400 एंट्रीज वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द MMR रीजन, मुंबई महानगर रीजन एक्चुअली। सो इसमें हम लोग को एंट्रीज मिली। सो वी स्टार्टेड, हमने वो छोटे मछुआरों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से बात करना चालू किया। तो हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। मैं ऑफलाइन भी काम का आपको बताना चाहूँगा, जैसे केतकी ने बताया कि तो जैसे आंदोलन होते हैं या जो भी होते, कई चीज़ें जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वाड़वन बंदर का जब इशू था तो हमने माहिम में एक आंदोलन किया था। इस साइड का जो फोटो है अभी राशन किट का, जो साइक्लोन अफेक्टेड हो या जो गरीब कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी में से जो गरीब मेंबर है जिसके पास फूड का वो पहुंचना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम पहुंचा सके। तो ऐसे कई कार्यक्रम हम अरेंज करते हैं भूमिपुत्र फाउंडेशन के जरिए। अभी जो मार्केट का इशू हुआ था ये बहुत रिसेंट है, अभी लास्ट संडे का ही 15 अगस्त को। मैंने कहा था कि 15 अगस्त में मनाऊंगा नहीं, क्योंकि 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे। मेरे अगर कम्युनिटी के हो या मेरे बहन है, मेरी माँ है, उनके अगर मार्केट तोड़े जा रहे हो तो मैं यहाँ पे फ्री नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है, तो आई हैव टू रिबेल। तो आई हैव कॉल्ड द पीपल इन टर्म्स ऑफ, मैंने एक सिर्फ वीडियो बनाया कि मैं प्रिंट आउट लेके जाके खड़ा रहने वाला हूँ, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज ज्वाइन। और लोग जुड़ गए, कल्याण से लोग जुड़ गए, भिवंडी से लोग जुड़ गए, रायगढ़ से, ठाणे से, अलग अलग रीजन से लोग आए और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो आंदोलन हम कर पाए वहाँ पे। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं भूमिपुत्र फाउंडेशन में। ऑफलाइन चीज़ें में जैसे केतकी और उन्होंने जो प्रोग्राम रखा था, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, जहाँ पे भी हम सजेशन रख सकते हैं कोशिश करते कि रखें, नॉट ओनली इन कम्युनिटी बट जैसे आप देख रहे हैं सिंगापुर एंड जापान की एक टीम आई थी, डेलीगेशन, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ कैसे यहाँ पे काम होता है। विशेष चर्चा सत्र रहते हैं, रोटरी जैसे प्लेटफॉर्म से, ब्लू कॉन 2019 में हुआ था वेयर आई वाज अ गेस्ट स्पीकर। तो ऑफलाइन भी हम हमारे जो कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, ना कि सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ये करते हैं, बट लोगों तक ज़्यादा से जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कोशिश करते हैं कि वो हर एक इशू उसका लिजिटिमेटली अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। क्योंकि हम ब्रांडिंग से आते हैं और हमें ब्रांडिंग में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है और जो बेहतर दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। तो आई थिंक हमारे जो कम्युनिटीज़ के इशू है वो आई थिंक अभी बेहतर तरीके से दिखाने होंगे, उसको लिजिटिमेटली प्रॉपरली लीगल गाइडेंस लेके उनको सरकार तक लेके जाना होगा, ताकि हम उसका पुरजोर क्या बोलते हैं विरोध भी हो सके और उसका सॉल्यूशन भी निकले। विरोध से ज़्यादा हमको सॉल्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज की जो यूथ है उनको इंटरेस्ट है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर पाए। तो ये सॉल्यूशन कैसे हो पाएंगे, तो कई चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। मैं 3 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक चीज़ होगी जो नेशनल लेवल पे होगी, एक चीज़ जो होगी वो सिटी लेवल पे कर सकते हैं, एक चीज़ जो होगी अपने गांव में हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल एंगल्स की आप ग्लोबली भी काम कर सकते हैं, आप लोकली भी काम कर सकते हैं। तो सर्टेन आइडियाज आई एम वर्किंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिशरमैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की निर्मित करें, जो कि सिमिलरली राजन जी और हम एक और फ्रंट पे लड़ रहे हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोस्टल ऑटोनॉमस बॉडी जिसको कहा जाएगा, कि सागरी स्वायत्त परिषद, जहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल फिशरमैन जो कोस्ट लाइन पे बसे हैं ये निर्णय लेने में क्षमता रखे, ना कि कहीं दिल्ली में या कहीं एक जगह पे निर्णय हो और वो वहाँ पे वो उन्होंने सोचा कि इस जगह पे समुद्र पे वॉल डाली जाए, ये समुद्र पे ये किया जाए। यहाँ पे लोकल कंसेंट होना काफी जरूरी होगा। वैसे ही फिशरमैन चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म होगा जो इकोनॉमिकल बात करेगा डेवलपमेंट ऑफ द फिशरमैन की, जिसका मुझे लगता है कि ग्लोबल आउटरीच आज जो भी है, मराठा कॉमर्स चैम्बर्स है, आज बॉम्बे कॉमर्स चैम्बर्स है, तो हम एक ड्रीम कर रहे हैं कि फिशरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जहाँ पे जो फिशरमैन है, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, जो फिशरमैन हम जैसे जो डायरेक्टली, जैसे गणेश नाकवा इज स्टडीड इन यूके एंड ही केम इन फील्ड की कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए और फिशिंग का काम करना चाहिए, तो ही डायरेक्टली कनेक्टेड। बट पर्सन लाइक मी, मैं ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि वो जो फिश बेचने का तरीका होगा, उसको फिश को प्रोसेस में कैसा प्रेजेंट करना है, तो शायद हम इस पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे। तो फिशरमैन चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी आइडिया होगी जो
आपकी अलग अलग आइडियाज को प्लेटफॉर्म देंगी। सो दिस विल बी एक ऐसा होगा कि ये ब्रिज करेगा जो नॉर्मल मछुआरा है, उसके बीच में जो मिडल मैन है, ये बाकी कम्युनिटी में से आ रहे हैं और दे आर टेकिंग मेजर बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये जो गैप करेगा कि इसको ग्लोबली कैसे अटैच किया जाए, तो हम चाहते हैं कि फिशरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निर्मित हो। ये हम भूमिपुत्र फाउंडेशन से काफी पुरजोर इसमें प्रयत्न कर रहे हैं। फिशरीज साइंटिस्ट डॉक्टर ओझा ने एक कोट किया था यहाँ पे कि उन्होंने कहा था कि वो एक चैम्बर का कुछ सोच रहे थे, बट ही फेल्ट कि जब हमने उनको फिशरमैन चैम्बर के आइडिया बताया कि ही सेड कि कोई तो कम्युनिटी में से कर रहा है, सो विच ही फेल्ट हैप्पी, तो वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े अफसर्स है, लॉयर्स है, दे हैव क्रिएटेड बायलॉज ऑफ दिस। तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी के लिए आए, कम्युनिटी में से आए, बट कोशिश जारी है और हम ये इस पे फिशरमैन, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक देश भर का या ग्लोबल लेवल का होने के चांसेस है। सो सिमिलरली जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि सागर जब आया तब न्यूज़ या चीज़ें होने लगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि fishermantimes.com का एक ऑनलाइन गठन हो जहाँ पे राजेंद्र जी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ पे कि ये फिशरमैन टाइम्स जो है वो फिश रिलेटेड या फिशिंग रिलेटेड या जो लाइव स्टॉक होगा या जो भी इंफॉर्मेशन है, आज हम टैगिंग का भी बात कर रहे हैं फिश को, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये न्यूज़ पोर्टल जैसे हो और उस पर वो इंफॉर्मेशन आए। तो ये हमारा प्रयत्न है कि ये देश भर के लेवल का या ग्लोबल लेवल की एक चीज़ बने। हमारा एक प्रयत्न है, जैसे मैंने कहा कि देश के बाद हम आएंगे अपने सिटी में, अपने एरिया में, अपने रीजन में, तो हम एक कोशिश करें कि भूमिपुत्र बाजार जहाँ पे जैसे फिश वेंडिंग मशीन्स है या फिश वेंडिंग्स है, जो CIFE डेवलप कर रहा है, CIFT डेवलप कर रहा है, ये अपने लेडीज को हाइजीनिक तरीके से कैसे मिले, वो हाइजीनिक तरीके से कैसे हो जाए। कोविड के बाद काफ़ी गाइडलाइंस चेंज हुई है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, तो आई थिंक CIFE इज ऑल्सो वर्किंग। तो ये फिश का जो है वो अच्छी तरह कैसे माल लोगों तक पहुँचे, भूमिपुत्र बाजार के जरिए हम कर सकते हैं क्या। स्टेट फिशरीज इज टॉकिंग अबाउट द फिश ऑन व्हील। फिश ऑन व्हील, आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे जाओ तो मैं फिश ऑन व्हील काफ़ी साल से मैं बात कर रहा हूँ इस पे, और ये स्कीम्स ऑलरेडी है। आप देखो सब्जियों की डायरेक्ट फार्मर्स से मिली है लोगों को इन्फॉर्मेशन, बट फिश ऑन व्हील का ये होते हुए दिखता नहीं है। बट हमारा इसमें पुरजोर कोशिश है कि फिश ऑन व्हील की भी ये है वो अभी जो केंद्र सरकार है उन्होंने FPO का भी गठन करने की शुरुआत की है, फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिटेल के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ है जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक साथ आके, जैसे कोऑपरेटिव का ये छोटा स्वरूप होगा जिसमें वहीं के लोग वहाँ पे बेच सकते हैं क्या। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भूमिपुत्र बाजार के जरिए हम ये चीज़ कम्युनिटी में लेके आ सके। हम कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी में से लोग ये कर रहे हैं कि जोड़ के इस पे काम करना चाहते हैं। ये जब मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ तो इट इज़ नॉट विकास कोहलीज प्रोजेक्ट, इट इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर दी कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, जो आज का हमारा मेन मकसद है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं कोलीवाड़ा रक्षक पे, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ यूथ फोर्स कि जहाँ पे यूथ एक साथ आए। आज बहुत बारी होता है कि हमारी जो जगह है बाजू में हाई राइज आने के बाद गलियां सक्रिय हो गई, छोटी चीज़ें हो गई, आज गटर का ढक्कन ओपन होता है लेकिन बनता नहीं। बट मैं जिनको माइग्रेंट एलिट अर्बन्स बोलता हूँ, जो दूसरे राज्य से, दूसरे प्रांत से आए, यहाँ पे सेटल हुए, दे आर स्टेइंग इन हाई राइज बिल्डिंग, अगर वो हंगामा करता है तो BMC वहां पहुंच जाती है, कोई भी हो जाता है। बट लेकिन यहाँ का जो नेटिव है वो नेटिव शायद पहुंच नहीं पाता, या लोग उसकी बात समझ नहीं पाते, या हम पहुंच नहीं पाते, शायद दैट कुड बी अ राइट स्टेटमेंट। तो कोलीवाड़ा रक्षक एक ऐसी टीम होगी जो ये सब चीज़ों पे काम करेगी। बेसिकली आइडिया ऐसा है कि कैन वी क्रिएट 911 ऑफ अ कोली कम्युनिटी, कि अगर कोई बूढ़ा है, अगर कोई वहाँ पे ज़रूरतमंद है, तो हम उसके पास कैसे पहुँच सकें। ये हर विलेज में, ये अगेन दिस इज अ फ्रॉम कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। तो हम चाहते हैं कि ये लोग ही जुड़े और इस पे हम काम करें। क्या ये SOS सिस्टम हो सकती है। फिशर वुमेन, आज फिशर वुमेन जैसे किसी ने अभी कहा था थोड़े टाइम पहले कि वो हम में एक ही नहीं है,
तो एक ही नहीं है, क्योंकि एक बाजार का जब टूटना होता है तो दूसरा बाजार उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो वी वांटेड टू क्रिएट अ फिशर वुमन टास्क फोर्स कि एक के लिए दूसरा खड़ा हो जाए। और आई थिंक अभी जो यूथ में पिछले 3-4 दिन से इंस्टाग्राम पे मुझे कोशिश कर रहे हैं लोग जुड़ने की, वो बात कर रहे हैं कि हाउ यूथ कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम, एंड दिस विल नॉट हैपन लाइक हाउ ट्रेडिशनली थिंग्स हैव हैपेंड। पिछली बारी जैसे चीजें हुई है ट्रेडिशनली, आज चेंज हो रहा है, ऑनलाइन चीजें हो रही है, ऑफलाइन चीजें हो रही है, तो दोनों का कैसे संगम हो जाए, कैसे मंथन हो जाए और मंथन में से चीजें बाहर आ जाए, तो हम ये एक रीजन लेवल पे कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो मैंने कहा कि ये देश, रीजन या एक छोटा सा वर्सोवा, तो बॉम्बे 61 ने जो प्लेस मेकिंग चीज की है, जो ये जो चीज की है, उसके हम कैसे सपोर्ट सिस्टम बने, केतकी और जय ने जब बताया तो आई वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड कि अरे वाह ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो आप देखो, एक ये आप इमेज में देख सकते हैं कि एक ऐसी जगह थी बिफोर एंड आफ्टर वो कैसे हो गई। तो आफ्टर का ये फोटो देखो आप और बिफोर का ये, इसमें आप एक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा था एक जगह पे जो आपके लेफ्ट में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और राइट में है वो ऐसा बन गया। तो इसमें केतकी और जय जैसे लोग जो है बड़ी चाव से काम करते हैं, तो हम जैसे लोग भी उनमें जुड़ना चाहते हैं और उनमें आई फील रियली हैप्पी। अभी ये जो सब चीजें मैंने बताई, ये चीजें करने के लिए टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी होना काफी जरूरी है, और मेन मतलब टीम। तो आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, दिस इज ऑलवेज इक्वल, वी आर भूमिपुत्रस, वी आर द सन ऑफ द सॉइल्स। तो टीम होना काफी जरूरी है, और हम ये टीम बोल के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स एरिया, और उस एरिया में हम क्या बेटरमेंट ला सकते हैं, दैट इज द होल आइडिया। तो इतना कह के मैं आज का ये थैंक यू बोलूंगा। आपको टीम बनना है तो www.vikaskoli.com पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप विजिट कीजिए। जय मल्लार, थैंक यू सो मच। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बहुत सारे आइडियाज से आई फील पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड, एंड दिस हैज बीन ग्रेट टू हियर सो मेनी डिफरेंट आइडियाज, एंड आई होप जितने भी कोली लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो आपके साथ जुड़ सकें और आपको कांटेक्ट करें आफ्टर दिस पैनल। but this has been very exciting. I think I loved hearing all of y'all. And now we have some questions from the audience that we would definitely want to take up. Ketki, do you want to start? Please type in your questions. Given the shortage of time, हम लोग सबको unmute नहीं कर पाएंगे. दिव्येश का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं देख पा रही हूँ वो है, how can a working youth get involved in this team? Whatever is the way that we can help. विकास जी, मेरे हिसाब से पहले आप शायद जवाब दे पाए और फिर गणेश और राजहंस जी भी ऐड कर सकते हैं। Okay. See, I think दिवेश, इट्स अ काय बोलतात ना मराठीत आपण बोलतो की एक जाणीव असली पाहिजे फॉर द कम्युनिटी. इफ यू हॅव दॅट you don't have to be a part of anyone's team. You can start yourself. You can be, of course, जैसे I felt when Ketki and Jay has approached me for the placemaking, I have put myself, you can check it out with them, like मैं तो वो जब बन रहा था I was more excited and I was standing there and सब पेंट कर रहे हैं and everything. So I personally believe you should be part of the team, whoever doing the best. You feel कि आपके एरिया में कोई कर रहा है, please be a part of that. You don't need to be a part of Vikas team or someone else's team. जहाँ पे भी revolution है, you be a part of it. If anything is happening good in your area also, I don't know where you stay, but be a part of that. That's it. This is where I'm coming from. Thank you. This is very inspiring. Rajan ji, Ganesh, do you want to add? बराबर बोला, विकास ने जो बताया है सही है. Thank you. We have a question from Mr. Nikhil Anand, who I believe is from University of Pennsylvania. He says that I have a question about fishing. I understand that the amount of fish caught has declined, but have the kinds of fish also changed? Is the catch now, the type of fish available, different from what used to be caught before? Ganesh, would you like to come in on this one?
Thanks, Arpita. Hi, Nikhil. How are you? I mean, Nikhil and me have been in touch for the longest time now. Yes, Nikhil, lot has changed. बहुत कुछ बदला है. 20 साल पहले जो fish मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है. Not only the type of fish, but the size of fish has drastically declined. तो I think हम लोग अभी जितने भी लोग जुड़े हैं वो बहुत बड़ा क्राइसिस है कि हम क्या फिश पकड़ रहे हैं और क्या साइज पकड़ रहे हैं. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के लिए. लोग 2030 सस्टेनेबिलिटी का बात करते हैं, SDG गोल्स है सबके, एंड 2048 में फिश नहीं बचेंगी बोलते हैं, बट वो बहुत ही लंबा है. व्हाट इज हैपनिंग वेरी क्विकली इज, अगर यही चलता रहा तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में ही बहुत सारा प्रॉब्लम होगा. जस्ट टू ऐड ऑन, अभी लास्ट 2 महीने से भी पूरा भारत घुमा हुआ, एक्चुअली गुजरात से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक एवरी बड़ा हार्बर में ऑलमोस्ट जाके आया हूँ मैं लास्ट 2 महीने. एंड निखिल, सैडनिंग की नॉट ओनली मुंबई महाराष्ट्र, पूरा इंडिया में ये क्राइसिस चल रहा है कि फिश का पॉपुलेशन इज गोइंग डाउन ड्रास्टिकली और फिश का साइज इज ऑल्सो गेटिंग अ कंसर्न. सो टाइम आ गया है कि पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की होती है, but I think it has to come from the whole supply chain perspective as well, not only fishermen, but the entire supply chain. जो फिश खरीदते हैं, जो मार्केट में लेके जाते हैं, और ऑब्वियसली जो फिश खाते हैं, तो वो होलिस्टिक अप्रोच आना चाहिए, एजुकेशन आना चाहिए हमारे फिशरीज सिस्टम में, हमारे फूड सिस्टम में. आई विल कॉल इट सी फूड सिस्टम. हम देखो, हम सब लोग जानते हैं कि सब्जियां कौन सी होती है, कौन से सीजन में, फ्रूट्स कौन से होते हैं कौन से सीजन में. बट अगर किसी भारतीय नागरिक को पूछो कि फिशरीज का सीजन क्या है, कौन से सीजन में कौन सा फिश खाना चाहिए, वो प्रैक्टिकली हमारे इंडिया में नहीं है. तो आई थिंक जितने भी आज लोग जुड़े हैं, मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि फिश के इकोलॉजी होती है, वो समझना चाहिए कि कौन सा फिश कौन से सीजन में खाना चाहिए, तो ही सस्टेनेबिलिटी हो सकता है. अगर आप रोज पॉम्फ्रेट खाओगे, तो मेरे जाली में तो रोज पॉम्फ्रेट नहीं आता है, मेरे जाली में हर 100 टाइप के फिश आते हैं. सो यू हैव टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स. So that is a simple message and a simple answer for that, Nikhil. You know, we have to change our eating practices. तो जो भी यहाँ पे अगर शेफ जुड़े होंगे, होटल है, राजन जी भी है, यू नो, हम लोग को अलग अलग फिश टाइप प्रमोट करनी चाहिए. क्यूजिन्स के साथ हमको सिर्फ पॉम्फ्रेट और सुरमई नहीं दिखाना चाहिए, बाकी और भी फिशेज है वो उनको भी प्रमोट करना चाहिए. क्योंकि मैंने एक्चुअली बताया नहीं मेरा काम के बारे में. लास्ट 3 साल से मैं बहुत सारे होटल मैनेजमेंट स्कूल्स में भी जाता हूँ, DI पाटिल हो, ITM हो, वहाँ पे जाके कंजर्वेशन का बात करता हूँ, फिशिंग प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ, कौन सी मछलियाँ उपलब्ध है हमारे कोस्ट में, वेस्ट एंड ईस्ट, कौन सी मछलियाँ यूज होनी चाहिए. सैडनिंग, जब भी टेक्स्ट बुक खोलते हैं कुलिनरी आर्ट्स के, वहाँ पे सिर्फ सैल्मन और बासा सिखाया जाता है उनको. सो आई वाज वेरी सैड टू नो दिस फैक्ट्स कि होटल इंडस्ट्री में ये सब पढ़ाया जा रहा है, एंड दे आर कुकिंग इन इंडिया, वेयरएज वी आर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट और 100 टाइप्स ऑफ फिश है. बट उनके बारे में जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट को, उनको ये पता नहीं है. सो आई थिंक इट शुड स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली एज. एजुकेशन सिस्टम में फिशेस का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है. हम लोग किंडरगार्टन स्कूल के बुक्स देखो, उसमें गोल्डन फिश देखते हैं. वो गोल्डन फिश की जगह आई थिंक 15-20 फिशेस दिखानी चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाते हैं, तभी जाके हमारा सिस्टम चेंज हो सकता है. Thank you, Ganesh, for this very long answer. We have so many questions, so I'm just going to quickly go to the next one. Sneha Gamreji asks, so we saw many issues due to various factors such as infrastructure, climate change, and so on. I would like to know what are the challenges faced by the community regarding food security. Rajhanji, do you want to address this? फूड के बाद देखिए अभी क्या है, जैसे अभी गणेश जी बोले हैं, हम घर में जब भी हम गेस्ट आ जाते हैं तभी हम उनको फिश खाने की कौन सा फिश कैसा खाने का वो भी सिखाते हैं. जैसे कि मांदेली है और लो कॉस्ट फिश है, जो मार्केट में लो कॉस्ट माना जाता है, वो ज्यादा रिचेस्ट मैन खाना नहीं चाहता. मगर जब भी हम उसको सिखाते हैं कैसा खाया जाए, रिबन फिश होगा या वाकपी है, वाकपी फ्राई, तो ये जो फिश है, छोटे छोटे फिश हम हमारे क्यूजिन में उनको सिखाते हैं कैसा खाना चाहिए. तो यही एक कारण होगा कि सबको सब फिश जो है समुद्र से जितने भी फिश मिलते हैं वो खाने लायक है और हर एक की टेस्ट अलग होती है. यहाँ पे जैसे चिकन और मटन में मसाले की टेस्ट होती है, वो मीट की टेस्ट नहीं होती. यहाँ पे मच्छियों में हर मच्छी की अलग अलग टेस्ट होती है,
वो टेस्ट कैसे होने हैं, वो उसकी पारख होनी चाहिए, वो खाने वाले को बराबर मालूम होती है। और अभी क्या होता है, मच्छी ही कम मिलती है खाने वाले। बहुत सारा जो इंटीरियर एरिया है महाराष्ट्र का, वहाँ पे फ्रेश फिश नहीं मिलती, कि फूड की बहुत सारी कमी हुई है, क्योंकि मच्छी मिलती ही नहीं। इसलिए जो मच्छी मिलती है वो कैसी खानी चाहिए, वो कौन से सीजन में खाना चाहिए, उसका जानकारी देना जरूरी होगा। Thank you, Apke ji. We have another question from Prathamesh Kohli, which I think is very important for us to address. Has government had or has any initiative in the past or in the current times to encourage youngsters to opt for fishing economy as a career? Should I? Yes, please go ahead. प्रथमेश, यस, लॉट ऑफ बहुत सारे स्कीम्स हैं, बट हमारा बॉम्बे का प्रॉब्लम है, हमारे पास लैंड नहीं है। गवर्नमेंट का लास्ट 5 ईयर से स्कीम्स देखा जाए तो बहुत सारा स्कीम एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर के ऊपर है। एंड हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मुंबई में बैठ के वो सब नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम हमारा फिशिंग, जो मरीन फिशिंग है, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव हो गया है और गवर्नमेंट की स्कीम्स है ही, बट मैं जस्ट कहना चाहूंगा कि पिछले 6 साल से मैं जितना गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, हर 6 महीने में हमारा सेक्रेटरी और कमिश्नर चेंज हो जाता है, तो जो भी स्कीम आता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। एंड सैड पार्ट ये है कि गवर्नमेंट में, टू बी वेरी फ्रैंक, कौन सा भी स्कीम आता है, महाराष्ट्र कोस्ट कभी फिशरीज नहीं समझ रहा है। जैसे केरला और तमिलनाडु इम्प्लीमेंटेशन करता है फिशरीज में, वैसा महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। इसके लिए यूथ का लेवल जो विकास काम कर रहा है, उससे वो आवाज बढ़ सकता है। बट टू स्टार्ट विथ, यू कैन ऑलवेज हैव एन वैल्यू एडिशन, मतलब कोई फिश नहीं पकड़ सकता है तो यू कैन ऑलवेज एंटर द सप्लाई चेन, द रिटेल चेन, जिसमें वैल्यू एडिशन आ सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा स्कोप है एंड आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स सी फूड में सबसे बड़ा चेंज वही होने वाला है। आप चाहिए तो देख लो, लिशियस और फ्रेश टू होम जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको इंटरनेशनली 200 मिलियन की फंडिंग आ रही है, दैट इज 1500 करोड़। तो आई थिंक हमारे जैसे यूथ ग्रुप साथ में आने चाहिए लोकली। हम लोग सिटी में रह के भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं है, स्कीम्स बहुत सारे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य व्यवसाय में भी स्कीम्स है, और ऐसे स्कीम के लिए गवर्नमेंट पे रखना विश्वास नहीं। अच्छा डीपीआर बनाओ, बैंक में जाओ, आपके पास आइडिया का होना जरूरी है, एंड आपका बैकअप ऑब्वियसली फिशिंग कॉन्टैक्ट्स होगा तो आप कर सकते हो। एंड मेरा अगर कुछ भी हेल्प चाहिए इसके लिए तो आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प यू, प्रथमेश। Thank you, Ganesh. I think what would be helpful, Ketki, that we share the phone numbers and email IDs of the speakers here. Yeah. So whoever has not received their answer to their question can receive it after this panel as well. We have a very important question again from Alankar A, who says, how much of community rights, land rights, sea space rights, coastal rights are recognized by law? Is there ambiguity in these, which is increasing vulnerability of the Koli community rapidly as the city evolves? Anybody, any of the speakers could actually pitch into this one. I think Rajans can help on this. We can put light. देखिए, अभी विकास ने एक बात कही थी ऑटोनोमस काउंसिल की, ऑटोनोमस मरीन काउंसिल की बात की थी, जो हम सदियों से मांग रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। आज भी हमारा अधिकार है, वो कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है। आज भी हम हमारे जो झगड़े होते हैं, जैसे कि पालघर और वसई के फिशरमैन में हमेशा जब भी मच्छी कम हो जाते हैं वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जब भी लैंड की बात होती है, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू बॉम्बे में आ रहा है, न्यू बॉम्बे में जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो वहां पे जिनकी लैंड, फार्मिंग लैंड उसमें इन्वॉल्व हो गई है, चली गई है, उनको 22.5% डेवलप लैंड दी जाती है। मगर वही एयरपोर्ट के अंदर करीबन 45% फिशिंग लैंड चली गई है। मगर उस फिशिंग लैंड चली जाने के बाद भी एक भी फिशरमैन को वहां पे एक प्रकल्पग्रस्त या फिर डेवलप लैंड नहीं दी गई है। तो इस तरह से लैंड में फिशरमैन को निग्लेक्ट करते हैं, पानी में भी निग्लेक्ट
किया है, क्योंकि ओएनजीसी का हम कहेंगे, ओएनजीसी का जब भी सर्वे आ जाता है तभी फिशिंग बैन करते हैं। ओएनजीसी जब भी स्टार्ट हुई थी 1971 में, 74 में जब भी उनको पहला रिग मिला, तेल व्हीर मिला, तभी एक भावना थी हमारी कि भारत के प्रति, इसलिए हम हमारे फिशिंग बोट से उनके अधिकारियों को हम वहां तक पहुंचाते थे। मगर आज 70% ओएनजीसी का प्रोडक्शन बॉम्बे हाई से होता है। बॉम्बे हाई से होते हुए भी फिशरमैन वहां पे पूरा डिस्टर्ब है, फिर भी ओएनजीसी से कभी ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट होगी तो फिशरमैन को नहीं किया जाता है, या टेंडरिंग होता है उसमें नहीं ले, या सीआरएस उनका फंड होता है फिशरमैन के लिए, कभी वो आगे नहीं चले आते। तो इस तरह से सब देखा जाए तो फिशरमैन कम्युनिटी को, जैसे कि सीआरजेड जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए था, वही उतना डाइल्यूट कर दिया कि हमारा जो वास्तव है पूरा निसर्ग पे, वो निसर्ग पे जो हमारा अधिकार था वही वो छीन लिया है। I would like to add some point here. कैसा है ना, जैसे राजन जी ने जो बताया ना उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। 2013 में माननीय संसद पार्लियामेंट ने कायदा पारित किया हुआ है, पुनर्वसन कायदा, ठीक है, मतलब रिहैबिलिटेशन एक्ट। वो रिहैबिलिटेशन एक्ट के जरिए काफी चीजें हो सकती है कम्युनिटी के लिए, बट इस एक्ट का जानकारी का अभाव या ये लोगों में नहीं है, ये कि ये चीज है, देयर आर सर्टेन थिंग्स एग्जिस्ट, जो चीजें है उसका लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक सोसाइटी टू सोसाइटी अगर इसकी जानकारी दी जाए, कुछ छोटे ऐसे ही सिंपोसियम रख के या कोई छोटे गैदरिंग्स रख के, तो आई थिंक लोगों में काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जिससे उनको उनके हक का पता चलेगा। क्योंकि क्या है, इफ गवर्नमेंट हैज प्लान, अभी अगर संसद में कायदा पारित हुआ है तो वो लोगों के लिए ही है। इट इज जस्ट हाउ बेस्ट यू कैन प्ले द चेस खेलने आता है, बट बेस्ट खेलना चाहिए, तो ताकि हम उस पर मात कर पाए सामने वाले पे। तो आई थिंक ये उसका जरिया है कि लोगों तक ये रिहैबिलिटेशन एक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जहाँ कहीं पे भी प्रकल्पग्रस्त हो या कुछ हो तो उनको उनकी बेनिफिट मिले। Thank you, Vikas ji or Tapke ji, of course. We have run out of time. We are already 11 minutes over time, and I know a lot of questions are there. What we could do is connect all of you all with the speakers here. और जो भी recording हुआ है, जो भी आज बात हुई है, वो सब record हो चुकी है, and we will upload it on YouTube और email पे आपको सबको भेज देंगे जिन्होंने भी sign up किया है. I would like to pass it back to the Bombay 61 team now, जय और केतकी, जो last words बोलकर ये panel को close कर सकते हैं. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for firstly the speakers for your presentation, for your time, and thank you for all the participants for your time and patient listening. There were some very interesting comments and questions that were coming from your side. And I would just like to add one small comment where we were talking about land rights and coastal rights, the commons that we call, कि जो समंदर है, जो क्रीक है, नदी है, मैंग्रोव्स है, कोस्ट है, बीच है, ये सारे कॉमन जगह है, जो पब्लिक के जगह है, इसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास जाता है. सो आई थिंक दैट ownership somewhere brings in the complexities, and we always felt कि हमें कोली लोग को एज अ गार्डियन देखना चाहिए. दैट्स व्हाट वी ऑलवेज फील, दैट वी शुड सी देम एज गार्डियंस ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो महत्व उनके जीवन में ये सब नेचुरल रिसोर्सेज का है, वो महत्व शायद हम में से किसी का इतना हम देख नहीं पा रहे, या फिर हमें देखना जरूरी है अभी इस समय पे. तो definitely that is something which I would like to add, and I think even Jay would want to add something. Jay, you are on mute. Yeah, thanks, Arpita. Yeah, I just wanted to add one thing at the end, कि based on what Ketki was saying, जैसे अभी
when we're talking about the guardians and other things, but there are multiple issues that we spoke about today, and there would be issues even in future. But as as our panelists have kind of worked hard towards coming to a kind of a resolution towards those issues, मतलब उसको solve करने की कुछ कोशिश करनी चाहिए. And looking at the particular community, I think we're facing a lot of concerns heading towards that future. मतलब आगे जाके हमें और भी problems आने वाली है as this particular community. So if we could just come together as what Ganesh and all these panelists have tried to focus upon, that we should connect together and try to move towards some kind of solutions, or how to resolve these problems is most important thing here. It's easy to kind of complain and crib about certain things, but it's even more tougher to kind of create a solution towards it, and that is what we need to work towards, right, rather than just kind of sitting back. So let's do that, and I think you can connect with any one of us at any point in time, and we would be glad to be a part of that particular thing. Yeah, that's it. Thanks, you. everyone. Thank you. And have a good evening. Thank you. Thank you. Thanks.